Hello students, today I am going to discuss a numerical problem based on the cooling and cooling and humidification. A 200 meter cube of air per minute pass through the adiabatic humidifier. The condition of the air at the inlet is 40 degree dry bulb temperature and 15% relative humidity, and the outlet condition is 25 degree centigrade dry bulb temperature and 20 degree centigrade wet bulb temperature. Find the dew point temperature and the amount of water vapor added to the air per minute. Okay students, I hope you understand the problem. You may read it. This is the question of your textbook. 200 meter cube of air per minute pass through the adiabatic humidifier. The condition of air at inlet is 40 degrees centigrade dry bulb temperature. This is the dry bulb temperature, and 15% relative humidity. RH means relative humidity, and the outlet condition is 25 degrees centigrade dry bulb temperature and 20 degrees centigrade wet bulb temperature. Find the dew point temperature and the amount of water vapor added to the air per minute. Okay, so now if we mark the point on the psychometric chart, this is your psychometric chart. Okay, condition of point 1 is 40 degree dry bulb and 15% relative humidity. तो दो कंडीशन आपको गिवन है. 15% is the relative humidity and dry bulb temperature is 40 degree centigrade. So from the 40 degree centigrade we draw a vertical line up to the 15% relative humidity. This intersection point is point 1, and we can also mark the point 2 here. The point condition of the point 2 is 25 degree centigrade dry bulb temperature and 20 degree centigrade wet bulb temperature. Here the wet bulb temperature and dry bulb temperature is given. So we draw the vertical line from 25 degree centigrade up to the line of the 20 degree centigrade wet bulb temperature. This inclined line will be the wet bulb temperature line. Okay, so from the 20 degree centigrade 25 degree centigrade dry bulb temperature, draw the vertical line up to the 20 डिग्री सेंटीग्रेड वेट बल्ब लाइन. ऐसे यहाँ पर एक इंक्लाइन लाइन होगी जो वेट बल्ब टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड को रिप्रेजेंट कर रही होगी. अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड एग्जैक्टली आपको नहीं मिलेगा तो आप स्केल से उसको ड्रॉ कर लेंगे. ऐसे पैरेलल लाइन्स, ऐसे लाइन्स होंगी, इनके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे. आप सपोज करो 30 डिग्री है, सॉरी 10 डिग्री है, और सपोज करो 15 है, 25 है, तो यहाँ पर आप 10 का डिफरेंस है तो उस तरह से आप ड्रॉ कर लेंगे. ओके, स्केल लेके कि कितने पॉइंट पे यहाँ से 20 डिग्री सेंटीग्रेड आपको मार्क करना है, तो इसके पैरेलल लाइन या इसके पैरेलल लाइन इस पॉइंट तक आप ड्रॉ कर लेंगे तो वो वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन होगी. वैसे 20 डिग्री सेंटीग्रेड एग्जैक्टली आपको गिवन होगा. ओके, सो वी कैन मार्क द पॉइंट 2 इजीली नाउ. सो what फाइंड द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. ओके, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आपसे पूछा गया है, तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पॉइंट 2 पे जो एयर है जो एग्जिट हो रही है पॉइंट 2 पर, दिस इज विल बी द प्रोसेस फ्रॉम 1 to 2. दिस इज द प्रोसेस ऑफ द कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन. ओके, दिस इज द कूलिंग प्रोसेस एंड दिस इज द ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस. This is the cooling process, this is the humidification, like this. Cooling and humidification resultant of this. So this is, here we show only the resultant, this 1 to 2. This is the 1, इसको A मान सकते हैं, and 2. Okay. Sorry. So point 2, we draw the a horizontal line up to the saturated curve.
Horizontal line represent the dew point temperature and dew point temperature can be read from the saturated curve. तो पॉइंट 2 से हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है कहाँ तक, सैचुरेटेड कर्व तक, वहाँ पर हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर रीड कर लेंगे. दिस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज 17.6 डिग्री सेंटीग्रेड. मार्क कर लेंगे आप स्केल से, आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे. एग्जैक्टली वहाँ नहीं गिवन होगी ये चीज़. ठीक, ओके. नाउ वी अगेन नेक्स्ट पार्ट इज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एडेड. अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एडेड टू द एयर पर मिनट. अमाउंट ऑफ वाटर वेपर मास फ्लो रेट पर मिनट फाइंड आउट कर रहा है, तो मास फ्लो रेट आपको फाइंड आउट करना है. अब V1 दे रखा है, V1.1 पे वॉल्यूम दे रखा है, 0.1 पे आपको वॉल्यूम दे रखा है, दैट इज द V1 और दैट इज 200 मीटर क्यूब पर मिनट गिवन है. वॉल्यूम मीटर क्यूब पर मिनट आपको गिवन है. पर मिनट कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है इन मीटर क्यूब. ओके. स्पेसिफिक वॉल्यूम वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम द पॉइंट वन से आपकी स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन्स जो जा रही होंगी उनसे आप स्पेसिफिक वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे. पॉइंट 1 पे स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना है, स्पेसिफिक वॉल्यूम विल कम इन मीटर क्यूब पर केजी ऑफ ड्राई एयर एंड गिवन इज 200 इज मीटर क्यूब पर मिनट. If we divide these two, so we can find the kg per minute. This is the mass flow rate, kg per minute. Okay. So how to find the mass flow rate? B1 हमें 0.1 पे वॉल्यूम मीटर क्यूब पर मिनट गिवन है, मीटर क्यूब पर केजी हम फाइंड आउट कर लेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो मास फ्लो रेट आ जाएगा B1 अपॉन VS1 स्पेसिफिक वॉल्यूम एट 0.1. This is the specific volume at 0.1. Okay. स्पेसिफिक वॉल्यूम एट 0.1 मीटर क्यूब पर केजी ऑफ ड्राई एयर. और आपको B1 पता है तो B1 अपॉन BS1 दिस विल बी द मास फ्लो रेट. ओके. तो मास फ्लो रेट इज 22 दिस. ओके. स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आप फाइंड आउट कर लेंगे पॉइंट 1 पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी W1, पॉइंट 2 पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी W2. तो W1 एंड W2 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे, डायरेक्ट चार्ट से रीड कर लेंगे. दिस विल कम 0.007 एंड 0.0126. ओके. तो अमाउंट ऑफ वाटर ये पूछा गया है आपसे, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एडिड पर मिनट. वाटर वेपर एडिड पर केजी, किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर, तो वो कितना है W2 माइनस W1. ओके. इनिशियली W1 था, फाइनली W2 हो गया, तो कितना वाटर वेपर ऐड हुआ दिस. ये है किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर. ओके. इसको मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर दें. मास फ्लो रेट किस में है, केजी ऑफ ड्राई एयर अपॉन पर मिनट. केजी ऑफ ड्राई एयर MA W2 माइनस W1 इज द वाटर वेपर रेट ऑफ वाटर वेपर एडिड पर मिनट. दिस विल बी इन केजी पर मिनट. केजी ऑफ ड्राई एयर आपने देखा होगा, हमने मीटर क्यूब पर मिनट और आपने मीटर क्यूब पर मिनट और केजी पर मिनट को मीटर क्यूब पर मिनट और मीटर क्यूब पर केजी को आपने डिवाइड किया था, यानी कि स्पेसिफिक वॉल्यूम और वॉल्यूम को आपने वॉल्यूम फ्लो रेट को आपने डिवाइड किया था, तब केजी ऑफ ड्राई एयर पर मिनट आया था. ओके. अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, ये किस में है, केजी अपॉन केजी ऑफ ड्राई एयर. ओके. तो देन दिस केजी ऑफ ड्राई एयर विल कैंसिल आउट, किस में आएगा, केजी पर मिनट में. ओके. तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एडेड इज केजी पर मिनट, दैट MA W2 माइनस W1. MA की वैल्यू आप पुट कर देंगे, W2 की वैल्यू पुट कर देंगे, W1 की वैल्यू पुट कर देंगे. दिस विल कमन 1.25 kg per minute. This is the amount of water vapor added per minute. So this is the question of the cooling and humidification. आप देख सकते हैं ये प्रोसेस होगा, ये आपका कूलिंग प्रोसेस होगा और ये ह्यूमिडिफिकेशन.
resultant of these two process will be this 1 to 2. Okay, so this is all about the cooling and humidification. So student, do the numerical from your textbook based on this topic. There are a lot of numericals. If any confusion, please ask me. Thank you.